بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو بنیادی مدعا تھا وہ مہنگائی اور اکانومی کی جو معاملات چل رہے تھے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ پاکستان جس گرداب میں پھنسا ہوا تھا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی پالیسیز کی وجہ سے، اس سے باہر آیا ہے۔ اس سال کا جو بجٹ ہے وہ عکاس ہوگا ہماری جو پچھلے سالوں کی کارکردگی رہی ہے اس کا، اور کتنے مشکل حالات سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس بار جس قسم کا بجٹ پاکستان کے عوام کے سامنے آئے گا اس سے ہماری مشکلوں میں کمی آئے گی۔ ترقیاتی بجٹ میں اضافہ کیا جا رہا ہے، تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دی جا رہی ہے، مہنگائی میں کمی کے اور جو اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد آمدنی میں اضافے کے اوپر زور دیا جا رہا ہے۔ یہ اس بجٹ کے بنیادی اہداف ہیں جو کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو ویژن دیا ہے اپنی فائنانس ٹیم کو اس کے مطابق، اور پاکستان میں ایک طویل عرصے کے بعد اور یہ دیکھیے یہ سب کچھ اس کے باوجود ہوا ہے جبکہ ہمارا پوری دنیا اس وقت کووڈ سے لڑ رہی ہے، اور ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں جن میں ہندوستان سر فہرست ہے، وہاں کی معیشت اس وقت -7.3 سے بالکل ہی ڈوب گئی ہے، اور جس طریقے سے باقی ملکوں کی بھی اس وقت معیشت کا حال ہے وہ بہت ہی پتلا ہے، اور ہم الحمدللہ اس میں نہ صرف سٹیبل ہیں بلکہ بہتر ہو رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ تعلقات کار میں بہتری چاہتے ہیں۔ ہم پہلے بھی جو اس کے اوپر جو اصلاحات کے اوپر بات چیت کرنا چاہتے تھے، ہم اب بھی بات چیت کرنے کے لیے پوری ایفرٹ کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور مریم نواز کا آپس کا جھگڑا ختم ہو تو پھر پی ایم ایل این کو فیصلہ کرے کہ ان کی آخر پالیسی کیا ہے۔ اسی طرح سے پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو صاحب کا اور عدی فریال کی پالیسیاں آپس میں جڑیں تو پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ پیپلز پارٹی کی پالیسی کیا ہے، اور پھر جب یہ دونوں کلیئر ہو جائیں گے تو پھر فضل الرحمان صاحب کی سمجھ آئے گی کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ ان تینوں کا قبلہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ کسی کو کسی کی سمجھ نہیں آ رہی، پارٹیز کے اندر لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کو فالو کرنا ہے کس کو فالو نہیں کرنا۔ ایک بکھری ہوئی تنکوں کی طرح بکھری ہوئی اپوزیشن ہے اس وقت۔ ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا پاکستان میں بڑا اہم رول ہے، ہم اس رول کو تسلیم کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن اصلاحات جیسے اہم معاملات کے اوپر، عدالتی اصلاحات جیسے اہم معاملات کے اوپر اپوزیشن کو حکومت کے اقدامات کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم الیکشن کمیشن کو بھی مل رہے ہیں۔ بدھ کو پی ٹی آئی کا جو وفد ہے اس کی ملاقات ہوگی الیکشن کمیشن سے، جس میں ہم جو خصوصاً ہماری الیکٹرانک مشینز ہیں، ووٹنگ مشینز، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جن کو ای وی ایم کہتے ہیں، ہم نے الیکشن کمیشن کو زور دیا ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرے اور اس کو پہلے آپ آزمائیں، پرکھیں، اور اگر اس میں کوئی نقص ہے تو ہمیں بتائیں، اور ہم اس میں پالیسی فیصلے حکومت نے کرنے ہیں، اور ہم نے فیصلے کرنے ہیں کہ آئندہ الیکشن جو ہیں وہ کس طریقے سے ہونے چاہیے، کیا ہونا چاہیے، رولز کیا ہونے چاہیے، ریگولیشنز کیا ہونے چاہیے۔ الیکشن کمیشن ایگزیکیوشن نام ہے، عمل درآمد کا ادارہ ہے، اور انہوں نے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے، لہٰذا اس کے اوپر ہم اپنی پالیسی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دینے کا ارادہ جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں الحمدللہ بجٹ آ رہا ہے، وفاق میں اور صوبے میں ہم بآسانی یہ بجٹ جو ہے وہ منظور ہوگا، کیونکہ عوامی فلاح کا بجٹ ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی پی ٹی آئی کو مشکل کا سامنا نہیں ہے۔ تمام اتحادی جو ہیں انہوں نے اس بجٹ میں اپنی جو حمایت ہے اس کا یقین دلایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تمام پی ٹی آئی کی کارکن ہیں وہ عمران خان کی قیادت میں متحد ہیں۔ اتحادیوں نے آپ کو وعدہ کر دیا، لیکن یہ آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن ان حالات میں آپ کو سپورٹ کرے گی؟ فاروق صاحب آپ بھی کریں۔ یہ فرمائیں کہ اپوزیشن نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ 1200 ارب روپے کی آڈٹ رپورٹ ہے کورونا کے حوالے سے، کورونا فنڈ کے حوالے سے، اس کو پبلک کیا جائے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ بلاول نے یہ کہا ہے کہ شہباز شریف کو آفر کی ہے کہ میں اپنی پارٹی آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ بجٹ کا راستہ روکیں۔ پارٹی تو بلاول صاحب نے پہلے ہی نواز شریف صاحب کے حوالے کر دی تھی، بلکہ مریم نواز نے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے حوالے کر دی تھی، وہ تو بعد میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی طلاق ہو گئی، ادروائز تو دونوں بیاہ کے ایک دوسرے کے گھر چلے گئے تھے، بٹا سٹا ہو گیا تھا، لیکن وہ انفارچونیٹلی میرا خیال ہے کوئی بات بنی نہیں ہے، اور دلہن ناراض ہو کے واپس چلے گئے ہیں اور وہ واپس چلے گئے ہیں۔
सो मैं तो चाहता था, हम तो चाहते थे कि ये शादी चलती रहे, लेकिन मुझे लगता है कि मौलाना साहब के जो छुहारे थे वो इतने तगड़े नहीं थे कि शादी बरकरार रहती। लिहाजा मौलाना साहब को अपना कंधा दोबारा पेश करना पड़ेगा। वैसे भी जो है उनके लिए अच्छा है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का असल काम भी यही है, वो नकाह वगैरह कराया करें, सियासत तो उनके काम का नहीं है। अच्छा फवाद चौधरी साहब ये बताइए, चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप के हवाले से ये कहा जा रहा है कि अगर अली जफर की रिपोर्ट पहले नहीं आती बजट से, तो बजट जो है उस हवाले से हम दोबारा फैसला करेंगे कि आया ये बजट पास होगा या नहीं होगा। इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जानबूझकर इस रिपोर्ट को लेट करवाया जा रहा है, इस हवाले से फरमाइएगा। जहांगीर तरीन साहब का जो पूरा एक समझिए कि धड़ा है वो पूरी तरह पीटीआई के साथ है। उनका जो लोग उनके खानों में जाते हैं वो ज़ाती ताल्लुक़ की वजह से जाते हैं, इसके अलावा उनका कोई और इस सरोकार नहीं है। जो वो तमाम MPAs और MNAs जो तरीन साहब के साथ जाते हैं उनके केस के ऊपर, वो एक ज़ाती ताल्लुक़ निभाने जाते हैं और उसमें कोई हर्ज नहीं। वो सारे हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, और जहांगीर तरीन साहब समेत तमाम अरकान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के ऊपर यकीन रखते हैं और उनको मालूम है कि इमरान खान जो है वो नाइंसाफ़ी होने नहीं देंगे, और चाहे वो उसके हक़ में हो या ख़िलाफ़ हो मामला, उसके ऊपर उनकी राय बदलेगी नहीं। आपने बड़ी अच्छी बात की कि बजट आ रहा है, इसमें आप सैलरीज को, चीज़ों को इन्हांस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और पहले और भी बड़ी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट में खासकर बड़ी रिफॉर्म्स हुई जो कई सालों से नहीं, लेकिन कुछ आपकी सरकारी इदारे हैं जो कई सालों से लाइक 10, 11, 12 साल से उसी वजह से काम करे। क्या उनके बारे में कुछ सोचने आने वाले बजट में, क्योंकि वो कॉर्पोरेशन कभी भी ना विफाक के अंडर आती है ना फेडरल के अंडर आती है। कई इदारे हैं जहाँ पर मसाइल है, मिसाल के तौर के ऊपर PTV है, मिसाल के तौर के ऊपर APP है, स्टील मिल्स है, PIA है। इन इदारों के लोगों का असल मसला ये है कि यहाँ पर बेपनाह सियासी भर्तियाँ की गई। PTV के अंदर 2008 से 18 तक 2200 लोग भर्ती किए गए, उनमें से 5% लोग भी मेरिट के ऊपर भर्ती नहीं किए गए। इसके साथ साथ APP को आप देखें, उनमें रिपोर्टर्स जो बुनियादी काम है वो जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो 200-300 से ज़्यादा नहीं है, और 600-700 लोग वहाँ पर मैनेजरियल पोस्ट के ऊपर लगे हुए हैं। जिस तरीके से इन इदारों को तबाह किया गया, उन इदारों में जिस तरीके से सियासी भर्ती, देखिए मेरे लिए तो बड़ा आसान है, मैं आज MNA हूँ, मैं अपने हर पोलिंग स्टेशन से 5-5, 7-7 लोग इन तमाम इदारों में भर्ती कर दूँ, मैं इलेक्टेबल हो जाऊँगा, लेकिन वो इदारे बैठ जाएंगे। सो इसको एक पूरा, और स्पेशली ये जो खुर्शीद शाह साहब आजकल कह रहे हैं 2 साल में बड़ा जुल्म हो गया है मेरा जेल में, इनको 150 साल जेल में रखना चाहिए जितना जुल्म इन्होंने पाकिस्तान के इदारों के साथ। अच्छा फवाद साहब ये बता दें कि मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि जो ताकत हुकूमत को लेके आई थी, अगर वो पीछे हो जाए तो ये रेत का ढेर साबित होगी हुकूमत, इसमें क्या हकीकत है? और मौलाना ये भी कह रहे हैं कि हम जो है PDM नहीं मदद मांग रहे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उन्होंने झंडी करवा दिया या ये गए ही नहीं थे उनके पास? जो ताकत PTI को इक़्तिदार में लेके आई थी वो हैं वो 2 करोड़ अवाम जिन्होंने PTI को वोट दिया था, और अब ये लोग उससे ज़्यादा हो गए हैं। लिहाजा फजलुर रहमान साहब के अगले कई 100 साल भी मुझे लगता है कि वो लगे रहेंगे, उनमें वो ताकत जो है वो नहीं आएगी। मुझे लगता है फजलुर रहमान साहब को अपने कुश्ते बदलने चाहिए, कमज़ोर लग रहे हैं। बताइएगा कि आपने छुआरों की बात की है, तो जहांगीर तरीन को छुआरे देंगे, किशमिश देंगे, और शहबाज शरीफ को कौन से कुश्तों की ज़रूरत है? जो आपने बात की है फैटफ की, ये देखे मैंने जिस तरह से बात की है जहांगीर तरीन साहब का, या बाकी मैंने बताया आपको कि जहांगीर तरीन साहब को भी इमरान खान साहब के विजन पे उतना ही यकीन है जितना बाकी PTI के लोगों को। प्रॉब्लम नहीं है। फैटफ में इंशाल्लाह बड़ी कामयाबी जो है वो पाकिस्तान को हासिल हुई है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अपनी फैटफ में हमाद अज़हर साहब को जिन्होंने इसको लीड किया, फिर हमारी लॉ मिनिस्ट्री को जिन्होंने इस तरीके को आगे बढ़ाया, और एक मिलजुल के तमाम इदारों ने फैटफ में जो कामयाबी हासिल की, ये पाकिस्तान की कामयाबी है, और इंशाअल्लाह ताला इस पर पाकिस्तान साहब ये बता दें कि तरीन साहब के अगर इख्तिलाफ़ात खत्म हो गए, इलेक्शन कमीशन ने जो आपका ई-सिस्टम वोटिंग सिस्टम है उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, और उनका ये कहना है कि ये आलमी मेयार पहले बंद कर चुका है। फिर किस तरीके से इस सिस्टम को आप नाफिज करेंगे जब इलेक्शन कमीशन इस पर
इलेक्शन कमीशन ने इस तरह के किसी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी के हेड हैं, वो इस कमेटी के मेंबर हैं, वो अच्छी तरीके से इस चीज़ को देख रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन समेत तमाम इदारे, ये फ़ैसला सियासी क़यादत ने करना, इसीलिए हम समझते हैं कि जो PMLN है, पीपल्स पार्टी है, ख़ुसूसन ये दो बड़ी पार्टियाँ, इनको हमारे साथ इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। और इन इंतखाबी इस्लाहात के नतीजे में पाकिस्तान में, अभी देखें ना, जो हारता है वो कहता है नहीं जीतने वाला गलत कह रहा है, जो जीतता है वो कहता है नहीं ये गलत है। सो उसके ऊपर हम यकीन नहीं, एक हमने आखिर इलेक्शन, हम तो चाहते हैं कि इसको फ़ौरन जो है वो एक्सरसाइज किया जाए। और कश्मीर के इलेक्शन आ रहे हैं, आप उनके कुछ हलकों में इसको एक्सरसाइज करें। और जैसे कि अभी 4 जो हमारा नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद है, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशंस हैं, फिर मुल्तान और लाहौर की जो बार एसोसिएशंस हैं, और रावलपिंडी इस्लामाबाद की बार एसोसिएशंस हैं, वो EVM के ऊपर ही अपने इलेक्शन कराने चाह रही हैं। और मैं बल्कि लाहौर प्रेस क्लब को भी ये देने जा रहा हूँ EVM के डेमोन्स्ट्रेशन। सो सारे सहाफ़ी और वकला जिनके इलेक्शन सबसे बड़े इलेक्शन होते हैं और सबसे समझिए कि हर साल होते हैं, उनको हम पहले EVM पे ले आते हैं। शहबाज शरीफ की एक्सेप्ट की जाएगी दरख्वास्त? अभी तक हम शहबाज शरीफ साहब को, हम उनकी रिटर्न नहीं आई, हम तो रिटर्न लिख चुके हैं स्पीकर साहब शहबाज शरीफ साहब को कि आप आइए और हमारे साथ बैठिए। मैं शहबाज शरीफ साहब से कहता हूँ आज अपना फोकल पर्सन नॉमिनेट करें और हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरा। साहब ये तरीन साहब अगर इख्तिलाफात ख़त्म हो गए हैं तो इशाइये तरीन साहब की जानिब से रोज़ चल रहे हैं, ठीक है, वो इशाइये क्या हुकूमत को हराने के लिए या किसी और? बात यह है कि जो भी वो भी एक सियासी आदमी है, जो लोग सियासत में होते हैं वो इशाइये भी देते हैं, बातचीत भी करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाहर जाने की, बाहर जैसे भी कहते हैं कि ना लोग किसकी थी? कोरोना के हवाले से। देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसके ऊपर बड़ी डिटेल अपना जो है वो एक रिपोर्ट जमा करा दी है AGPR के पास। AGPR ने वो रिपोर्ट आगे जमा करानी है। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, वो तमाम ऑडिट रिपोर्ट पहले ही जमा कराई जा चुकी है। जैसे भी देखिए जी, बात यह है कि पाकिस्तान में एक फ्री प्रेस है। हमारे यहाँ 112 के करीब प्राइवेट चैनल्स हैं, 43 के करीब फॉरेन चैनल्स हैं। ये जो एक इंडियन लॉबी का प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है इंटरनेशनली कि पाकिस्तान में कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, हमारे मुल्क में पेक्यूलियर हालात हैं, उनमें के पीछे एक इंटरनेशनल, देखिए 850 वेबसाइट हमने पकड़ी थी जो इंडिया चला रहा था, वो पाकिस्तान के अंदर ये हवा देते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर जितना आज़ाद मीडिया है, इस तरह की कोई और मिसाल कहीं पे ना कोई और आपको मुस्लिम वर्ल्ड में तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, आपको किसी और थर्ड वर्ल्ड में भी नहीं मिलती। हमारी प्रेस शायद फर्स्ट वर्ल्ड से भी ज़्यादा आज़ाद है। आप मुझे जर्मनी में ज़रा हॉलोकॉस्ट के ऊपर किसी जर्नलिस्ट को कहें ना ज़रा लिख के दिखाए, आप ज़रा इनको कहें अमेरिका में कहें ना इसराइल के ऊपर लिख के दिखाए। ये हर मुल्क के एक अंदर जो है वो एक तरह के कुछ, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ आप ब्लास्फेमी नहीं कर सकते, ये वेस्ट के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, हमारे लिए ये रेड लाइन। सो हमारी अपनी रेड लाइंस हैं, उनकी अपनी रेड लाइंस हैं, वो अपनी रेड लाइंस में खुश रहें, हमें हमारी रेड लाइन में। सर, बाहर जाने के लिए शहबाज शरीफ की दरख्वास्त दोबारा आ गई, अब जाने दिया जाएगा कि फिर उनको? वो तो कोर्ट ने, हमने तो उन्हें ECL पे डाला है, बाकी तो अदालत में वो जाएँ और वहाँ पे हम अपना केस लड़ेंगे। शहबाज शरीफ साहब का कोई केस है नहीं, हम समझते हैं उनके केस की डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, उनको सज़ा होनी चाहिए।